So we have a doubt in exercise 14. Exercise 14, question number 10. The question is, in a circle of diameter 30 centimeter, a circle of diameter 30 centimeter. Okay, that means radius is 15, diameter is given 30. Okay, the length of a chord is 15. So one length is there, which chord is 15. This is 15. So now they are asking to find the length of minor arc of the chord. Minor arc means they are asking the length of this one. What is the length of this arc? So angle only, if you know this angle, then we can easily find L equal to r theta. And what will be this angle? This is given r, this is given 15. So this angle is 60 degree. So that means theta is equal to 60 degree. If we convert it into radian, it is pi by 3 radian. So the length of minor arc would be r theta. R is equal to 15 into pi by 3. That is 5 pi centimeter. So this is my answer. Okay. Angle this is na. We have to find the angle. ठीक नहीं? Draw कर ले easily देखा जाए angle is 60. ठीक है? Because it is equilateral triangle. ठीक है? So it will be 60, 60, 60. আরো একটা আরে কি এগুলো তো স্টার্টই হয়নি অঙ্ক এখনো এগুলো তো জাস্ট রিফ্রেশিং চলছে এগুলোর মধ্যে এত ডাউট কেন এ ট্রেন ইজ মুভিং এট এ সার্কুলার কার্ভ অফ রেডিয়াস 1500 ট্রেন ইজ মুভিং এট এ সার্কুলার কার্ভ অফ রেডিয়াস 1500 at the rate of 66 km/h the রেডিয়াস বলেছে কত 1500 মিটার The train is moving in this circular path at the rate of 66 km/h. The speed is given 66 km/h. So now they are asking through what angle it has turned in 10 seconds. तो 10 सेकंड में कितना गया कितना एंगल टर्न किया तो लेट मी फाइंड 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया लेट्स फाइंड दिस डिस्टेंस इन 10 सेकंड in 1 hour in 63,600 second it covers 66,000 meter. ठीक है? So in 1 second it will cover 66,000 divided by 36,000 इतना मीटर. 0000 6 से काटा 11 6 से काटा 6. ठीक है? So this much meter. अभी आपने को क्या बताया? तो ये क्या हो गया L. So therefore L is equal to 110 by 6 which is 55 by 3 meter. आपने को पता है L is equal to क्या है r थीटा. So थीटा निकल जाएगा 55 by 3 divided by r but r should be in सेंटीमीटर से मीटर में आना पड़ेगा which is 15 meter. So 1500 centimeter means it is 15 meter. So meter. So ultimately your answer is theta तो मीटर में नहीं है theta is in radian. So your answer is 1/3 radian. 1/3 radian. If it is okay, then it is okay. If they may ask it in degree also. If they are asking in degree, कोई क्वेश्चन में कहते हैं 40. Just the angle. तो radian रख ले ठीक है? 1/3 1/3 radian. Okay. I think আর তো সমস্যা নাই আর আছে লিখে নাও next we will extend our angles class 10 whatever we have done that we have done up to 0 to 90 degree. So there was no concept of any quadrant. Now we will have a concept of quadrant. Suppose this is my initial line. So from here to here this movement is 90 degree. तो क्लास 10 में जो भी था all these was in this area.
and this area is known as first quadrant. That is first quadrant. Quadrant means चार में से एक piece ये वाला first quadrant. So because our movement is in anti-clockwise direction, that is positive sense. So this becomes our second quadrant, this becomes our third quadrant, and this becomes our fourth quadrant. So you can understand from 0 to 90 degree it is in first quadrant. This angle is, this was in class 10. Okay, and this is 90 degree line. This is 0 degree line, and this one is 180 degree line, and this one is 270 line. So you can again write this one as 360 line. One complete rotation. You can keep on rotating. Yeah. So the angle will be more than 160. So first quadrant is always between 0 to 90. Second quadrant is, you can understand, it is from 90 to 180, then 180 to 270, then 270 to 360. It's better you remember this one in radian also. So it is this 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, and last one is 2 pi. Okay? So these are the radian notation. Yeah? You should understand this. Now, whatever the trigonometric ratios we have understood in class 10. Class 10 is যতটুকু আমরা trigonometric ratios করছি. What are the ratios? Basic formulas I am not writing. Trigonometric ratios basically is for an right angle triangle. Theta theta. We have sin theta. Full form was sin E. Short form is sin. Then complementary to sin, that was cos. Sin cos, tan, tangent. Then complementary to tangent, cot. Then secant. Then complementary to secant, it was cosec theta. All this you know, height by base, base by height, that cosec theta is 1 by sin theta, cos theta is 1 by sec theta, tan theta, and there were some basic formulas. Sin square plus cos square equal to 1, 1 plus tan square equal to sec square theta, 1 plus cos square theta equal to cosec square theta. These are the things that we have studied in class 10. अभी class 11 में आके क्या हो रहा है? Because the angle is going further 90 degree. So how does my right angle triangle look like? Class 10 में ये था मेरा right angle triangle. This was my hypotenuse, this was my height, and this was my base. Okay. Now, in class 11-12 now, যদি আমি second quadrant যাই, so this angle is moving. So another right angle triangle will be this. So this is the angle now, and this is my height, hypotenuse. This is height, this is base. So देखो, because you are going in the negative direction of x, your base is now negative. Height is positive because coordinate geometry के साथ मिलाओ. This is positive x, this is negative x, this is positive y, and this is negative y. So this is your theta, and for this theta you have a negative base. Hypotenuse is always the distance between 2 points, so it will be always positive. Hypotenuse हमेशा positive रहेगा. यहाँ height भी positive था, base भी positive था. यहाँ hypotenuse हमेशा positive रहेगा because it is the distance between 2 points. यहाँ height positive है और यहाँ base negative. Okay. So due to this positive and negative signs, the value of sin cos এখন আর পজিটিভ নাই সব সময়। ক্লাস 10 এ কি আছিল অল পজিটিভ। দিস ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট ওয়াজ অল পজিटिव। जितना भी रेशियो था अपना sin थीटा cos थीटा ऑल वाज पॉजिटिव। अप टू दिस मच हर एक का वैल्यू क्या था sin 30 cos 30 cosec 30 sec 30 कुछ भी ले लो, एवरीथिंग बिटवीन 0 to 90 इज पॉजिटिव। नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट यू विल सी दैट ओनली sin इज पॉजिटिव। sin मींस sin का भाई cosec भी है, सो वी डोंट राइट cosec, बट वी अंडरस्टैंड दैट sin पॉजिटिव होगा तो cosec तो उसका उल्टा है, तो भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव। क्यों? साइन क्या होता है? हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, बिकॉज योर हाइट इज पॉजिटिव, तो इट्स अ पॉजिटिव। कॉस क्या होगा? कॉस बेस बाय हाइट, कॉस बेस तो नेगेटिव हो गया तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली tan हाइट बाय बेस होगा, वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है। नाउ इफ यू कम टू थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट का ट्रायंगल क्या होगा? इस टाइप का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का ये हो जाएगा हाइट, अभी हाइट नेगेटिव हो गया,
बेस भी नेगेटिव, बेस तो ऑलरेडी नेगेटिव था, ठीक है, लेकिन हाइपोटेनियस पॉजिटिव है बिकॉज इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इसलिए क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो जाता है, tan के साथ tan का भाई भी आ जाएगा cot, so we don't say cot, tan बोलते हैं तो cot we can understand, so it's a tan positive because देखो tan क्या होगा, हाइट बाय बेस होगा, दोनों नेगेटिव होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन भी हाइट बाय हाइपोटेनियस नेगेटिव होगा, cos भी बेस बाय हाइपोटेनियस नेगेटिव होगा, ठीक है। Now if we move to the last quadrant का एंगल कैसे होगा, it will be something of this fashion, ये वाला आ गया थीटा, ये ट्रायंगल हो जाएगा दिस टाइप, ठीक है। अभी इसका हाइट हो गया ये वाला, हाइट नेगेटिव है, बेस तो इसका पॉजिटिव है, और हाइपोटेनियस तो बिकॉज इट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सो इट विल बी ऑलवेज ए पॉजिटिव। अभी इसमें क्या हो गया, दिस फोर्थ क्वाड्रेंट इज फॉर cos, सो यहाँ cos पॉजिटिव बोलते हैं तो हम लोग sec उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो इसे all sin tan cos, हम लोग इसको कहते हैं all sin tan cos, शॉर्ट फॉर्म है all sin tan cos। All students takes coffee, असम स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, अरुणाचल स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, तो यू कैन कुछ भी करके जस्ट याद रखना है all sin tan cos, all sin tan cos, इसलिए बिकॉज which one is positive which one is negative we don't understand clearly, तो इससे अगर हमको पता चल जाए, यहाँ तक ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और फिर देखते हैं क्या है एक्चुअली कहानी। Now since we have understand that all four quadrants में positive negative ये सब चलेगा, so first let us write some basic formula, ঠিক আছে, আমি কি করতেছিলাম মনে করি এটা দেখলাম, ঠিক তো, এটা নিয়ে আগেরটা ওই all sin tan cos এটা তো হলো না। আচ্ছা, এবার কয়েকটা মেইন ফর্মুলাস ভ্যালুজ আমরা দেখে নিই, এরপর উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দি আদার ফর্মুলাস, ঠিক নেই, যেমন বই লোকে মিলতো না, বইলে একটু সিকোয়েন্সে নেই, সাইন জিরো কত আমার জিরো, সাইন পাই যদি হয় না সেম লাইনে সাইন পাই अगेन জিরো, তুমি দেখো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাইন জিরো জিরো, সাইন জিরো জিরো কেমনে, আমি কইছি দিস आर ऑल ट्रायंगल्स, ठीक नहीं, दिस आर ऑल ट्रायंगल्स, तो साइन जीरो कैसे है, क्योंकि ये था मेरा स्टैंडर्ड ट्रायंगल, सो दिस वाज थीटा। नाउ इफ यू मेक इट, अगर तुम इसको जीरो बनाओगे तो थीटा छोटा होते रहेगा एंड इट विल कम डाउन टू वेरी स्मॉल मींस इट विल बी दिस लाइन ओनली, थीटा जीरो मतलब यही बन जाएगा, तो तुम्हारा जो हाइट इसका हो जाएगा जीरो हो जाएगा, दिस वाज हाइट, ये करते करते जीरो हो जाएगा, और बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो जाएगा, तो तब तुम अगर साइन लगाओगे तो साइन क्या है, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज तो जीरो, कॉस लगाओगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, क्योंकि दोनों सेम हो गया तो 1 हो जाता है, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई साइन जीरो इज जीरो। सिमिलरली साइन पाई भी क्या होगा, ये वाला था अपना एंगल इधर वाला, तो ये बढ़ते बढ़ते जब पाई होगा तो इस टाइप का एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसका हाइट फिर से जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो माइन बी जो है उसका मॉड हो जाएगा, मॉड मींस यू विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि बी तो इसका नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज को तो हम क्या मानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दैट्स व्हाई वी राइट इट इज मॉड बी क्यों, क्योंकि बी तो नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज तो नेगेटिव नहीं होगा, मॉड विल मेक इट पॉजिटिव, मॉड ये तो डंडा देके जो लिखा है इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, विल अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इसलिए साइन पाई भी जीरो हो जाता है, सो दैट थिंग यू शुड नो, ये सब बेसिक। साइन पाई बाई टू क्या होगा, साइन का सारे लिख लेते हैं, साइन पाई बाई टू 1 है ऊपर वाला, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई नाउ इट इज 1, क्योंकि अभी ये वाला एंगल जो थीटा अभी बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते 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 जब 90 हो जाएगा देन योर ट्रायंगल विल लुक लाइक दिस, इसका बेस जीरो हो जाएगा और उसका हाइट और हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएगा, तो साइन क्या है, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो गया तो 1 हो जाता है उधर नीचे। सिमिलरली साइन 3 पाई बाई 2 में आप इफ यू कम इसमें आओगे तो यहाँ पर भी सेम, बिकॉज इट इज 3 पाई बाई 2, सो ये वाला जो एंगल है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सेम बेस जीरो हो जाएगा, हाइट और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ हाइट, मॉड क्यों दिया, क्योंकि हाइट तो यहाँ नेगेटिव होगा लेकिन हाइपोटेन्यूज विल नॉट कंसीडर नेगेटिव, सो इट विल बी -1, यहाँ क्यों -1 होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है और हाइट यहाँ नेगेटिव है, वैल्यू सेम है, एक +5 है एक -5 है, तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, इट विल बी -1,
तो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है ना, साइन का। सिमिलर नोशन में हम कॉस का भी लिख सकते हैं, ये चार। सिमिलर क्या होगा, कॉस जीरो कितना है अपना, कॉस जीरो है 1, कॉस पाई क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां चला जाएगा तो बेस नेगेटिव होगा तो -1, कॉस पाई बाई 2 क्या होगा 0, cos 3 pi by 2 is also 0. Similarly tan 0 कितना है 0, tan पाई क्या हो जाएगा, tan पाई मतलब वहां चला जाएगा, तो वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम उसका हाइट 0 हो जाएगा, तो हाइट बाई बेस इट विल बी 0, ठीक है। tan 90 इंफिनिटी है, सो इट इज नोन एज पॉजिटिव इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी इज इंफिनिटी को थोड़ा देखेंगे क्योंकि इंफिनिटी में बहुत कॉन्सेप्ट से आगे चल के आएगा। इंफिनिटी से नोशन, इंफिनिटी को हम कहते हैं ये फीलिंग है, ठीक है ना, ये आत्मा का फीलिंग है। क्या फीलिंग है, इट्स जस्ट इंडिकेटिंग दैट यू विल गेट अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। हाउ लार्ज, एज लार्ज एज यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है, जितना बड़ा तुम सोच सकते हो, दैट इज नोन एज दैट इज द मीनिंग ऑफ इंफिनिटी। सो इट्स अ नोशन। तो tan 3 पाई बाई 2 क्या होगा, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में सबसे बड़ा नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर यू कैन सो। सिमिलरली बाकी सब तो इसका उल्टा है, कोसेक तो यहाँ इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव इंफिनिटी, दिस विल बी नेगेटिव इंफिनिटी, दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक, समझ में आ गया, क्लियर है ना, दोनों पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव का होगा नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, सिर्फ सेक वाला नेगेटिव होगा। अच्छा, दैट यू विल अंडरस्टैंड लेटर, ठीक है। अभी फिलहाल ये 3-4 चीजें याद रखो, दीज आर बेसिक्स जो अपना था चारों क्वाड्रेंट। अभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे अभी एंगल तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, नो, नेक्स्ट इज द एंगल कैन बी एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले तो सिर्फ 0 to 90 था, यहाँ से यहाँ तक था, अभी एंगल तो कहीं भी हो सकता है। अभी एंगल समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक शॉर्टकट हम लोग सीखते हैं। यहाँ नाउ यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ बहुत सारे तरीका है टू अंडरस्टैंड दिस वन, बट द सिंपलेस्ट वन जो हम लोग देखते हैं, हम लोग एक शॉर्टकट बना लिया, उसको कहते हैं माछा। माछा मतलब हम लोग নোয়াখালীতে মাছা मीन्स ছা मीन्स বাচ্চা, ঠিক আছে। তো মুরগির বাচ্চা রে ছাক হয় একদিন, তো মুরগি যে সময় দেখবা মা যে সময় যায় পিছে পিছে বাচ্চাটি সব লাইনে চলে, so they follows the ma, so that is macha, ठीक है। now suppose if you are coming to this quadrant, जैसे ये क्या है, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, ये क्या है वर्टिकल लाइन है, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन है अपने पास। हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि वो सोया हुआ है इसलिए इसमें नो चेंज, जो सोया हुआ है उसका क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, और जो वर्टिकल लाइन है वो तो खड़ा है तो उसमें चेंज होगा ही होगा, ये ध्यान देना है, दो चीज ध्यान में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मान लो हमने क्या क्लास 10 में कितना था, साइन 90 माइनस थीटा था, कॉस 90 माइनस थीटा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम था ना, tan 90 माइनस थीटा। बाकी मैं लिख नहीं रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड, साइन का कॉस का सेक, कॉस का साइन, tan का कॉट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, these are कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ इफ यू मूव टू साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 90 से आगे बढ़ गया, अभी मान लो यहाँ पर आ गया एंगल, तो दिस इज 90 प्लस थीटा दिस एंगल। अब क्या बनेगा, अब बोला है कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा या फिर कॉस 90 प्लस थीटा, कुछ भी उठा लो, या फिर tan 90 प्लस थीटा या फिर sec 90 प्लस थीटा, बस ऑलमोस्ट आ गया। 90 प्लस थीटा में यहाँ माँ क्या है, साइन, जिससे हम लोग निकाल रहे हैं दैट इज योर माँ, अपना माँ क्या है यहाँ साइन है, तो माँ का बच्चा जो माँ को फॉलो करेगा, और ये लाइन क्या है, ये 90 डिग्री पे काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स विच लाइन, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में ये हमेशा चेंज क्रिएट करेगा, तो साइन बन जाएगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा कॉस, क्योंकि माँ वहां पॉजिटिव है, 90 प्लस थीटा मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में माँ क्या है पॉजिटिव ना नेगेटिव, पॉजिटिव, तो बच्चा भी पॉजिटिव बच्चा होगा, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा, सिमिलरली
वर्टिकल लाइन पे काम हो रहा है तो कॉस चेंज होकर हो जाएगा साइन, ठीक है। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माँ तो यहाँ नेगेटिव है, माँ यहाँ क्या है, व्हाट इज माँ, कॉस, तो कॉस इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, ठीक है। नाउ यू कैन राइट इट फ्रॉम योर ओन, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, अगेन वर्टिकल लाइन पे काम हो रहा है तो कॉट होगा, वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा, फिर क्या होगा, tan क्या है यहाँ नेगेटिव है तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, सेक का क्या होगा, कोसेक होगा, तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेक नेगेटिव है, माँ नेगेटिव है तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा होता है, चलो एक कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, तो यहाँ चेंज होगा क्योंकि 90 पे काम हो रहा है, सेक होगा, कोसेक माँ यहाँ पॉजिटिव है तो बच्चा यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बन के ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे अभी। ये कौन सा के लिए आया, ये पूरा आया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, एक्चुअली हमको ये सेकंड क्वाड्रेंट में डालना चाहिए था, ठीक है ना, तो इजी हो जाता है। क्या कहाँ से आएगा, कॉपी, yes. ये एक्चुअली वहां होना चाहिए था, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये जगह हो जाएगा मेरे को लिखने। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ और एक सेट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, क्या आएगा, अभी 6 का लिखने का जरूरत नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। आई विल राइट 1 2 एंड देन यू विल कंप्लीट इट। मान लो 180 माइनस थीटा, कॉस नहीं, चलो tan 180 माइनस थीटा, और एक मान लो कोसेक, मैं ये लिख रहा हूँ, यू कंप्लीट, बाकी सारे तुम घर में कंप्लीट कर लेना। क्या होगा ये अंडरस्टैंड करो, 180 माइनस थीटा दैट मींस इट इज स्टिल इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसी क्वाड्रेंट पे है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में नेगेटिव होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि कहाँ पर काम हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, 180 मींस इट इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, फ्लैट लाइन, 0 180 these are all flat lines, 90 and 270 these are all vertical line, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में नो शिफ्ट, साइन साइन ही रहेगा, तो माँ यहाँ पर ये वाला साइन था, बच्चा यहाँ पर दूसरा साइन है, ठीक है ना, तो माँ पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, tan tan ही रहेगा, क्योंकि माँ नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव आएगा, कोसेक सेम ही रहेगा, क्योंकि माँ यहाँ पॉजिटिव है तो बच्चा यहाँ पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली यू कैन राइट अदर 3 आल्सो, ठीक है ना, बाकी भी यहाँ लिख सकते हैं। इन द सिमिलर नोशन यू कैन डू दिस वन आल्सो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इधर देखें, जैसे मान लो साइन 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, देखो तो अभी खुद से ट्राई करो, यू कैन डू इट फ्रॉम योर ओन नाउ, थोड़ा ट्राई करके लिखो। और एक दूसरा ब्लॉक इसमें ये भी बन सकता है, जैसे साइन 270 माइनस थीटा, ये भी इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, 270 जाके फिर रिटर्न आ गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तो पूरा 270 था, तो 270 से थीटा वापस आ गया, सो दिस इज 270 माइनस थीटा, जाके फिर रिटर्न आ जाना, माइनस मतलब यू आर कमिंग बैक, और 180 क्रॉस करके फिर आगे बढ़ गया, दैट इज 180 प्लस थीटा, तो यहाँ साइन हो जाएगा सेम tan 270 माइनस थीटा, 2 लिखते हैं, बाकी से यू विल कंप्लीट, सो यू विल कंप्लीट ऑल दी 6, जितना हम मेरा कम बाकी है घर में लिख लेना, सो यू विल अंडरस्टैंड। अगेन कहाँ काम हो रहा है, 180 मींस दीज आर ऑल फ्लैट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो साइन साइन ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो माँ नेगेटिव है, ये वाला माँ नेगेटिव है तो बच्चा भी नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में तो सेम रहेगा, क्योंकि माँ पॉजिटिव है तो बच्चा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर सेम ही रहेगा, क्योंकि माँ यहाँ नेगेटिव है तो बच्चा यहाँ नेगेटिव होगा। यहाँ पर सेम साइन 270 माइनस थीटा
क्या होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम हो रहा है, सॉरी वर्टिकल लाइन पे काम हो रहा है, तो चेंज हो जाएगी, ये कॉज हो जाएगा। लेकिन यहाँ माँ नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ कॉट थीटा, माँ नेगेटिव तो बच्चा नेगेटिव, माँ पॉजिटिव तो बच्चा पॉजिटिव। ओके, वी हैव द लास्ट वन आई थिंक यू कैन नाउ अंडरस्टैंड। कॉस, चलो हर जगह में ये लिखा, साइन साइन लिखा, यहाँ कॉस लिखते हैं 270 प्लस थीटा, यहाँ कॉट लिखते हैं 270 प्लस थीटा, यहाँ कोसेक लिखते हैं 270 प्लस थीटा। सिमिलर नोशन में तुम इसमें और एक है cos 360 minus theta, that will also give you in this quadrant cot 360 minus theta, ठीक है। cos 270 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर काम हो रहा है, वर्टिकल लाइन पे काम हो रहा है, तो चेंज हो जाएगा साइन। कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया ये 270 प्लस, मतलब यू आर एंटर्ड इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। यहाँ से 270 होके फिर प्लस थीटा इधर आ गया, यू एंटर्ड समवेयर हियर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बच्चा भी पॉजिटिव निकलेगा। कॉट हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि कॉट यहाँ नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव होगा। कोसेक हो जाएगा sec, क्योंकि वो नेगेटिव वाला है माँ, तो बच्चा भी नेगेटिव होगा। cos 360 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो सेम रहेगा cos थीटा, क्योंकि माँ पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव। यहाँ पर कॉट ही रहेगा, क्योंकि माँ नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी सेम रहेगा, क्योंकि माँ नेगेटिव है तो बच्चा भी नेगेटिव होगा, ठीक है। सो दिस थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। अभी फिलहाल तुम्हारे लिए व्हाट आई से, यहाँ कुछ कुछ फॉर्मूलाज लिखा है 2n बोल के 2 पाई बोल के, दैट आई विल नॉट, अभी तुमको मैं ये सब देके मैं डराना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा बुक में थोड़ा आगे पीछे है, सो आई विल गो माय वे, ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। कम टू एक्सरसाइज 15 है, जो मिसिंग है दैट विल डू इन लेटर स्टेज, ठीक है। बीच बीच में विल कवर दिस वन, तो बुक का सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, बट विल कवर इट। एक्सरसाइज कौन सा है ये, 15, तो यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 15 है। हाउ डज इट लुक लाइक, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला 15, यस। सो इफ वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 15 है, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 देखते हैं। यहाँ पर 1 and 3 क्या बोला है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो फिलहाल हम सब ड्राइंग करके करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा ड्राइंग क्लियर हो जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्री मेरा इजी हो जाएगा समझने के लिए। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा एक चैप्टर है, वो खुद जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी चैप्टर के लिए हो जाता है, क्योंकि बाकी हर जगह में ये यूज है, ठीक है ना। जैसे लाइक अवर आलू हर सब्जी में डाल देते हैं हम लोग, लाइक ट्रिगोनोमेट्री कहीं पे भी आ जाएगा। सो टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए हम लोग स्टार्ट भी ट्रिगोनोमेट्री से किया, क्लास 10 का कंटिन्यूशन है, इजी रहेगा। अभी बोला है कोसेक इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट अगर यहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज योर थीटा। और जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इस टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, -√3/2। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम एंगल लिखते हैं, वैल्यू जितना तुम सीखे हो ना 0 से 90 तक, ये 30 डिग्री 45 60 वही सब रिपीट होता है, सिर्फ प्लस माइनस करके होता है। तो जब भी हम कुछ एंगल बोलेंगे, जैसे मान लो दो चीज का कॉन्सेप्ट में यहाँ ऐड कर रहा हूँ, एक है एब्सोल्यूट एंगल और एक है क्वाड्रेंट एंगल। ये मतलब किताब में नहीं है कहीं पे, बट हमने बना लिया अपने हिसाब से।
टू मेक यू अंडरस्टैंड। किसी भी एक एंगल को दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक होता है जैसे मान लो थीटा इक्वल टू 150 डिग्री, 150 डिग्री मतलब क्या होगा, इस टाइप का कुछ बनेगा, 90 से फिर और 60 चला गया, तो दिस इज 150। तो ये जो हम 150 लिख रहे हैं, कहां से स्टार्ट किया, जीरो से। तो जीरो से जब हम 150 लिखते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एंगल, मतलब ये एक्चुअल वाला है। अपने को आंसर यही करना है, लिखेंगे हम लोग वही, जीरो से 150 वही एक्चुअल है, उसी को लिखना है। किताब में भी ऐसे रहेगा, बट हम लोग मन ही मन कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेंट एंगल कितने हैं। अगर ऐसा है तो क्वाड्रेंट एंगल एक्चुअली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना है उसने, दैट इज माय क्वाड्रेंट एंगल, और वैल्यू उसी हिसाब से चलेगा। तुम देखना उसका वैल्यू क्या होगा, जैसे इसका क्वाड्रेंट एंगल कितना होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू, वेल से 150 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, टोटल तो 180 है, तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। वेल से सेम थीटा को 30 डिग्री बोलेंगे, बट 30 डिग्री इन सेकंड पॉइंट, वेल से 30 डिग्री लेकिन अंदर में सेकंड लिख देंगे, या फिर मॉनिमन सोचेंगे दैट इज 30 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर ऐसे लिख देंगे 30 डिग्री इन सेकंड, या फिर जैसे हो सकता है 30 लिख के मनीमन तुम 2 लिख के रखो, या फिर सोचो। ये जो चीज है इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट एंगल, और वैल्यू इसी हिसाब से आता है, ठीक है। ये अपना मनीमन कैलकुलेशन है, कहीं पे बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, किताब में भी नहीं मिलेगा, कहीं पे फॉर्मुलाइज नहीं है, लेकिन हम लोग मनीमन ऐसे सोचेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तुम देखो अभी साइन, जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ साइन 150 निकालने के लिए, तो तुम क्या करना, अच्छा साइन 150 बोला है, एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग जो हमने अभी सीखा है, क्या सीखा है, साइन 90 प्लस 60 लगा सकते हैं हम लोग, या फिर कोई बोल सकता है सर साइन 180 माइनस 30 लगा सकता हूँ, ये सब फॉर्मूला चलेगा, कोई बात नहीं, फॉर्मूला से करो हो जाएगा। बट मैं और एक चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में ये लग सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा हमने क्या देखा था, क्या होता है 180 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल पे काम हो रहा है तो साइन 30 रहेगा, क्योंकि माँ पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है। यहाँ से साइन 30 का वैल्यू आ गया हाफ, या फिर तुम इससे भी कर सकते हो, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा, क्योंकि माँ पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा, वो भी हाफ ही आएगा, हर जगह में सही आएगा। लेकिन फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला तो अभी सीखा है तो इसका भी एप्लीकेशन जानना जरूरी है, लेकिन हम लोग इसको मनी मन क्या करते हैं, क्योंकि 150 है तो अपने को पता है ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट एंगल कितना देगा, 30 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट देगा, तो मतलब 30 डिग्री का वैल्यू लेगा, डायरेक्टली विल राइट साइन 30, साइन 150 क्या होगा, हम लोग मनी मन सोच लेंगे, क्योंकि 150 मैंने लिखा हूँ, आई हैव रिटन 150 बट इट्स 30 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड बिकॉज इट इज सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव तो आएगा अपने को आंसर, तो अपने को पता है ये पॉजिटिव साइन 30 होगा, तो ये मनी मन कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसको कहने का क्या मीनिंग था, क्योंकि cos थीटा √3/2 है, माइनस को चलो भूल जाओ, क्योंकि माइनस किस लिए है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में दैट इज ऑलरेडी डन, तो मतलब क्वाड्रेंट एंगल कितना होगा ये, और क्वाड्रेंट एंगल हमेशा किसके साथ होता है, ऑलवेज विद हॉरिजॉन्टल लाइन, उस क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन जहां है उसके साथ एंगल, ठीक है ना, जो क्वाड्रेंट एंगल मानेंगे। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हो जाएगा क्वाड्रेंट एंगल, यहाँ पर व्हिच वन इज क्वाड्रेंट एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा क्वाड्रेंट एंगल, ठीक है ना। या फिर अभी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, क्वाड्रेंट एंगल cos थीटा √3/2 है, cos थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया माइनस √3 हाइपोटेन्यूज हो गया, इससे भी कर सकते हो, तो एंगल को छोड़ो, इसे क्वाड्रेंट एंगल छोड़ो। नॉर्मली मैं क्या बोल रहा था, बिकॉज इट इज √3/2 सो इट इज एक्चुअली 30 डिग्री, तो sin 30 cos 30 tan 30 करके सारे लिख लो, या फिर फिलहाल जरूरी नहीं, फिलहाल यू गो बाय ट्रायंगल ओनली, क्योंकि ये तो अभी इतना डिटेल आया नहीं, ठीक है ना। ये कंफ्यूजिंग है, नहीं लग रहा है, थोड़ा एंगल करेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ट्रायंगल से निकले, ये 3 है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 - 3 ये 1 बन जाएगा, और ये -1 होगा क्योंकि नीचे की तरफ है हाइट, और तो यहाँ से निकल जाएगा, तो cos थीटा बोला, तो sin थीटा क्या होगा इसका, sin थीटा क्या होगा, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, हाइट तो ये है, तो -1/2, ठीक है। cos थीटा उन्होंने दे दिया, tan थीटा क्या हो जाएगा इसका, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या हो जाएगा 1/2। सिमिलरली क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो इसका उल्टा -2, cot थीटा तो इसका उल्टा
√3 और एक क्या बच गया, वो लोग ने क्या दिया था सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, दैट इज -2। सो दीज आर दी थिंग्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन के लिए ये हो गया मेरा आंसर। तो जरूरी नहीं एंगल से जाओ, मैं सोचा एंगल से जाऊंगा, बट यू कैन ड्रॉ ट्राइंगल एंड डू। अभी ट्राइंगल ही करो, ठीक है ना। ये एंगल एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, थोड़ा मिक्स है आगे पीछे करके, तो यू यूज ट्राइंगल अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। क्वाड्रेंट एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे, फिलहाल के लिए यूज गो बाय दिस वन। डन, समझ में आया। सो नाउ यू कैन ट्राई, आई थिंक यू शुड ट्राई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, इसमें कुछ क्वेश्चन टिक करो एंड देन यू ट्राई। 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 7, 8 का 2, 4, 6, 9 का 2, 3, 5, 10 का 2। चलो ये सब करेंगे, पहले इसको ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सबका हो गया, सो फिर भी आई विल शो इट। एंड they are saying that theta lies in second quadrant. The second quadrant wala theta means this one, and this will be the triangle. Cosec is 3/5. Cosec, that means sin theta is, cosec theta से अपने को पता चल गया sin theta 3/5 है। ये 3 है, ये 5 है, ये हो जाएगा मेरा 4। So now you can understand it is -4 actually, because it is in this part. So it will be cos theta will be is equal to -4/5. And then cosec already has sec theta will be equal to 5 by -5/4. Tan theta will be equal to 3/4 -3/4, and then cot theta will be equal to -4/3. So these things you can easily understand. ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट वाला आई थिंक वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर कितना 5। फाइव भी उसी आंसर का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos एंड cot, ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 5 में क्या दिया है, कौन सा क्वाड्रेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी। सो थर्ड क्वाड्रेंट प्लॉट कर लेते हैं। सो दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट ट्रायंगल। ये एक थर्ड क्वाड्रेंट ट्रायंगल है, इसका साइन दे दिया -2√6 और इसका हाइपोटेन्यूज दे दिया 5। तो अपने को पता है क्या होगा, 25 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 25 माइनस 2 2 4 और 6 24, सो इट विल बी 1। नहीं तो रात में कर लेना, ठीक है। एंड दिस विल बी -1 क्योंकि ये इस तरफ है तो -x। अब यहाँ से पूरा पता चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा -1/5, sec थीटा हो जाएगा -5, tan थीटा क्या क्या चाहिए था, सब तो चाहिए थे ना, cos एंड cot। cot हो जाएगा tan का उल्टा, cot थीटा हो जाएगा, tan थीटा दिया था, cot थीटा हो जाएगा 1/4/6, ठीक है। सो दिस थिंग्स इज डन। सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज आई थिंक 7, ठीक है। 7 क्या करेंगे हम, सेवन में व्हाट इज गिवन, sec थीटा इज इक्वल टू -2 एंड योर x इज इन बिटवीन पाई टू 3/8। इसको अंडरस्टैंड करो, यहाँ डायरेक्टली बोला नहीं कौन सा क्वाड्रेंट है, बट दिस विल गिव यू हिंट कौन सा क्वाड्रेंट। पाई तो ये वाला था, सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल, एंड 3/2। तो मतलब कहाँ पर है ये जो एंगल है, ये जो एंगल है सेक के अंदर में, ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाला ट्राइंगल के फिर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इस टाइप का कुछ ट्राइंगल बनेगा। फिर अपने को क्या दिया हुआ है, sec x दिया हुआ है, sec x कितना है -2, तो cos x कितना हो जाएगा -1/2। तो ये हो गया -1 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 2 4 -1√3। ये भी माइनस होगा क्योंकि नीचे की तरफ है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड, तो tan थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, tan थीटा हो जाएगा √3 और थीटा हो जाएगा 1/√3, साइन है cos sin थीटा हो जाएगा √3/2
माइनस रूट 3/2 कोसेक थीटा हो जाएगा माइनस 2/3। डन। इजी है, जस्ट ड्रॉ करके देखना। इनिशियली ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ड्रॉ करोगे दैट विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट इट विल बी क्वेश्चन नंबर 8 ना। वेट का पहला दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखेंगे हम, इसको कैसे करते हैं। एक तो है जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 17π/2 में हम लोग नजदीक चला जाएंगे जितना जा सकता है। तो व्हाट यू कैन डू इज 18π माइनस π/2। तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा नजदीक चला जाएंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, यू कैन डू इट 16 + 1 ऑल्सो, कुछ भी करो हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल। तो 18π/2 अलग अलग कर देंगे। एक हो जाएगा 18π/2 माइनस π/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9π माइनस π/2 cos 9π माइनस थीटा। अच्छा 9π कहाँ होगा, थोड़ा घूम के देख लेते हैं। ये है 0, ये है पाई, तो पाई फिर 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, अपने को पता चल रहा है 8π। 9π कहाँ होगा, इधर आ जाएगा। सो 9π माइनस π/2, 9π माइनस मतलब पीछे चला जाएगा। सो इट इज लाइंग इन व्हिच क्वाड्रेंट, इसको ध्यान मत देना, डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। 9π माइनस, इसको थीटा मान के फार्मूला लगाओ। 9π यहाँ तक था, समझ में आया ना। हमने यहाँ से घूमना चालू किया तो 9π हमने यहाँ पहुंचे। तो 9π माइनस थीटा मींस विल कम बैक अगेन, पीछे चला जाएंगे, जैसे घूम रहा तो उल्टा जाना है। इट इज कमिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा लाइन पे काम हो रहा है, 9π मींस इट इज इन फ्लैट लाइन। तो क्या हो जाएगा cos π/2, फ्लैट लाइन में नो चेंज। माँ यहाँ नेगेटिव है तो बच्चा भी यहाँ नेगेटिव होगा, तो माइनस cos π/2। cos π/2 अपने के पास क्या है 0, तो क्या आ जाएगा ये 0, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है अभी इसको। नाउ यू कैन ट्राई, ठीक है। आप ट्राई करो। So now you can try question number 3। अच्छा एक चीज माइनस वाला हमने बताया नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। माइनस वाला हमने बोला नहीं, माइनस क्या होगा। एक चीज देख लो, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट का एक डेफिनेशन हमने छोड़ दिया, जैसे इसको देखो, ये है 0, तो हम अगर लिखते हैं साइन 0 माइनस थीटा, cos 0 माइनस थीटा। एक बार इसको कंप्लीट कर लेता है, tan 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा, 0 से माइनस थीटा मतलब कहाँ पर आ रहा है, हम लोग यहाँ पर आ रहा है। दिस इज माई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और 0 मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा होगा। माँ क्या है यहाँ नेगेटिव है, तो बच्चा भी नेगेटिव होगा। कॉस कोई चेंज नहीं होगा, माँ पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा। तो ये चीज ध्यान दे देना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, एक्चुअली साइन माइनस थीटा था, 0 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। कॉस माइनस को खा लेता है, ठीक है ना, साइन माइनस को नहीं खा पाता है, निकल जाता है। तो कॉस कैन डाइजेस्ट साइन, बट टेन और साइन कैन नॉट। कॉस डाइजेस्ट करेगा तो सेक भी डाइजेस्ट कर लेगा, साइन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कोसेक भी नहीं कर पाएगा, कॉट भी नहीं कर पाएगा। तो जैसे अगर टेन के अंदर अगर माइनस होगा तो तुम सबसे पहले क्या कर देना, माइनस को बाहर निकाल दो, क्योंकि टेन और साइन तो माइनस खा नहीं पाएगा, वो निकाल ही देगा, तो पहले निकाल दो। अब 25 पाई के आजू बाजू 3 का मल्टीपल क्या है, 24 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 3 8 are 24। यू कैन डू इट लाइक दिस। अभी आगे बढ़ो, ये बाई ये बाई जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस वन इफ यू कंप्लीट इट, it will be 10 8π plus π/3। so if you understand what is 8π, एक बार दो बार तुम घूमने से you will understand 8π will come here only, ठीक है ना। पाई 2π इवन वाला हमेशा इधर आएगा, फिर पाई फिर 2π, तो 8π will come here। 8π plus π/3, so you are in फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स क्या होगा, ये तो माइनस पहले से था और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम हो रहा है, तो 10π/3 होगा,
क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो माँ पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव आएगा. सो इट विल बी 10 pi by 3. 1060 is √3. So easy. So next is number 9. Nine में we have considered 3 questions. Question number 2, 3 and 5. 2 को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले माइनस का काम करेंगे. माइनस व्हाट वी हैव सीन, कॉस और सेक माइनस खा लेता है. सो इट विल बी सेक 1470. अब थोड़ा ध्यान देना, 1470 के आजू बाजू 90 या 360 का मल्टीपल या फिर 180 का मल्टीपल, 360 का मल्टीपल ले लो. 360 का डबल कितना है, थोड़ा दिन करोगे तो इट विल बी क्लियर. ठीक है ना. 360 का मल्टीपल क्या होगा, 720. 720 का मल्टीपल क्या होगा, 1080. 1080 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1080 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, फिर इंटू 360 तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1140 ना, 1440. ठीक है. तो अपने को पता चल रही है क्या हो गया, सेक कितना बार मल्टीपल, 2 3 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ 360 प्लस और कितना है 30 डिग्री. या फिर तुम डिवाइड कर लेना, 1440 को 360 से डिवाइड करना. बड़ा है तो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा 360 है. या फिर अपने को पता है 720 720 का डबल 2 1440 होगा. तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा. एक दो क्वेश्चंस करने से इतना मुश्किल नहीं होगा. तो कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, मीन्स 4 × 3, 4 बार घूमना है. 4 बार घूम के फिर 360 इधर आएगा, आके फिर प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया. सो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन, माँ भी पॉजिटिव बच्चे भी पॉजिटिव. तो क्या हो गया ये सेक 30. सेक 30 मीन्स कॉस 30 का उल्टा 2/√3. इजी. ठीक था. थर्ड वाला क्या है, 10 - 300. कैसे करेंगे, पहले माइनस निकालेंगे क्योंकि 10 तो माइनस हजम नहीं कर पाएगा. और इसको तुम ड्रॉ करके भी कर सकते हो, कैसे भी. फिलहाल ड्रॉ नहीं करेंगे हम, क्वाड्रेंट एंगल वाला हम छोड़ देंगे. नेक्स्ट क्लास में विल सी द क्वाड्रेंट एंगल वाला फर्स्ट, जो हमने कॉन्सेप्ट बोला उसको छोड़ दो अभी. तो यू विल राइट इट 360 - 60 ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो वर्क. माइनस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कम होगा तो 1060 होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है. 360 - 60 मतलब कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. माँ भी नेगेटिव बच्चा भी नेगेटिव आएगा. सो आंसर विल बी 1060, दैट इज √3. फिफ्थ वाला क्या है, कोसेक -750. तो कोसेक के लिए क्या होगा बेटा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस कोसेक 750. और 750 के आजू बाजू क्या है अपने पास, 720 है. सो विल राइट इट कोसेक 720 + 30. और 720 मतलब कौन सा जगह पे है ये, 720 मतलब 2 × 360. अभी लिखने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट 2 मतलब यहाँ पर आ गया हम लोग. ये प्लस, तो ये अगेन इट इज स्टैंडिंग इन व्हिच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, ये नो चेंज. इट इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, नो चेंज. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में माँ भी पॉजिटिव तो बच्चा भी पॉजिटिव. माइनस तो पहले से था, तो माइनस कोसेक 30 तो क्या हो जाएगा, -2. ठीक है. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 10 में हमने एक ही क्वेश्चन को रखा, क्वेश्चन 2. इजी है, जस्ट वैल्यू सारे डालना है. क्लास 10 वाला सिंप्लीफिकेशन है. सारे वैल्यू से पाई देके लिखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मींस ये रेडियन में, और कुछ नहीं. बाकी तो इजी है. टू स्टार्ट विद LHS क्या लिखा है, sin π/6 × cos 0 + sin π/4 × cos π/4 + sin π/3 × cos π/6. sin π/6 में sin 30. sin 30 क्या है, हाफ. इंटू cos 0. cos 0 क्या है, 1. sin 45 क्या है, 1/√2. cos 45 क्या है, 1/√2.
5/4 मीन्स 45। ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी क्लियर रहना पड़ेगा कि 5/6 क्या है। 180/6 कर दो, 180/4 180, और साइन 60 अगेन क्या है, √3/2, और 5/6 मतलब cos 30 अगेन क्या है, √3/2। तो होगा हाफ प्लस हाफ प्लस 3/4, 1/4 ना क्या होगा, 1 + 3/4, so I think it is 7/4. RHS भी 7/4, yes, proved. So this was very easy, क्लास 10 का ही है, जस्ट ये रेडियन में दे दिया और कुछ नहीं, ठीक है। सो टुडे विल स्टॉप हियर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। ঠিক আছে না, যেহেতু বেশি লোক আইছে না